So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class we are going to discuss a very important topic. I'm sure you must be aware, that is the winner of Nobel Prize 2025 in the field of physiology or medicine. So yesterday it was announced, and that is why I have decided to discuss it today, the winners. So about them, like they are from which country, which university, and what is the reason or the achievement for which they have got this award. Okay, so this we will be discussing it in today's class. So am I audible, visible? Is everything fine? If yes, then please write yes in the comments. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Am I audible? Okay. Fine. So let us begin. वैसे yesterday we have done this class and please go and watch it where I have discussed the history of Nobel Prize also. First of all, please subscribe to the channel. Go to the live section और यहाँ पे चले जाइएगा. So I have discussed about the history and important Indian winners of the past. क्योंकि ये past से भी question आता है. I'll show you in today's class. ठीक है. अगर आपने if you have seen the previous year question of CLAT, you must have seen they are asking questions from past also, like 2-3 years back, then a winner of Nobel Prize, like that. ठीक है. So जैसे एक बार क्या होता है CLAT 2023, which happened in December 2022. They asked the question about Nobel Prize in Physics 2020 winner. ये पूछा था. I'll show you in this class. In today's class, I will show you this. So Nobel Prize 2020 के विनर CLAT 2023 जो कि दिसंबर 2022 में हुआ था, उसमें पूछा गया था. ठीक है. So that is why you should have an idea about the past ones also, the important ones, which I have discussed in this class and further I will discuss in today's class also. तो आज की क्लास में हम लोग पास्ट का थोड़ा सा जानेंगे. ठीक है. So let us begin with the first question, and the first question is Nobel Prize in Physiology or Medicine is given by which country? From which country? Norway, Sweden, Finland, Denmark. In last class, yesterday's class, we have discussed in detail about the countries which are giving prizes. So there are 6 Nobel Prizes. One is given by Norway, that is peace. The other one are actually given by Sweden. So B is the right answer to this question. Yes, Adrija, Kartikeya, Chandralekha, Koshagra, you all right. It is actually B is the right answer, not A. Okay. So you have to be very much crystal clear. Okay. So Nobel Peace Prize is given by Norway, Norwegian Nobel Committee. And Sweden की capital है Stockholm, है ना. This country gives Nobel Prize in Physiology or Medicine. ठीक है. एक चीज ध्यान रखिएगा, ये Nobel Prize in Physiology है, not Psychology. Psychology ये होता है. ठीक है. So confuse नहीं कीजिएगा. This is Nobel Prize in Physiology, which is Nobel Prize in Medicine. ठीक also. ठीक है. So that has to be very crystal clear. Okay. है ना. तो ये नॉर्वे है, स्वीडन है, ये फिनलैंड है, और यहाँ पर बाल्टिक सी है. इस वाटर बॉडी को कहते हैं एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया आर कॉल्ड एज बाल्टिक कंट्रीज, है ना. सो द एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इसको क्या कहते हैं, इस वाला वाटर बॉडी को? गल्फ ऑफ बोथनिया. ठीक है. सो दीज आर बेसिक थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड. Okay, now the next one is name the institute which gives Nobel Prize in Physiology or Medicine. This we had discussed yesterday also. बताइए. Nobel Prize in Physiology or Medicine is given by which institute? We have discussed yesterday as well. Yes, Kartikeya, Adrija, Koshagra, Vanisha, Chandralekha, you all right. Nobel Assembly at the Karolinska Institute, है ना, which is based in Sweden. ठीक है. So A is the right answer to this question. So Royal Swedish Academy of Sciences जो है physics, chemistry और economic science में देती है. Nobel Assembly at Karolinska Institute gives in physiology or medicine. Yes, very good. Koshagra. And Swedish Academy Literature में देती है, और Norwegian Nobel Committee from Norway
नोबेल पीस प्राइज देती है, ठीक है, so ये आपको पता होना चाहिए. Okay, that is what you should be knowing about. So here is Nobel Assembly at Karolinska Institute giving Nobel Prize in Physiology, है ना, Stockholm, Sweden. 1978 में it was formed. It is having 50 members, है ना. Originally was not a formal body, or rather a collective of all professors. तो initially क्या था कि कई सारे प्रोफेसर्स मिलकर के Karolinska इंस्टीट्यूट बनाए थे, ठीक है. Now in 1977 Nobel Assembly became a separate private organization hosted by Karolinska Institute, ठीक है. So ये देती है Nobel Prize in Physiology or Medicine. Okay, now let's talk about this year's winner, which is the most important thing in today's class. Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025 winner. So here is the question, and I believe this is the most important question of today's class. The winner of Nobel Prize in Physiology or Medicine for the year 2025 are. आपके सामने एक question. And I'm expecting everyone to answer because yesterday it was in the news, so you all should be answering it. सारे लोग आंसर करो. All those who are watching, yes, Adija, Kartikya, Vanisha, Kushagra, Chandralekha. Very good. The right answer is option D. Mary E. Brunkov, Frederick J. Ramsell, and Shimon Sakaguchi. Okay, so D is the right answer to this question. ठीक है. Yes. So आप देख सकते हो, and these three have been given equally, ठीक है, यानी 1/3, 1/3 और 1/3, यानी one prize has been split into 3 parts, and all the 3 parts equally were given 3 equal, ठीक है. Mary E. Brenkov, Frederick J. Ramsdell, and Shimon Sakaguchi. Okay, these 3 are actually the winner of Nobel Prize in Physiology or Medicine 2025. Very very important, याद रखिएगा, स्टार मार्केट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं नोबेल प्राइज से. नोबेल प्राइज इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरी ई ब्रोनकोव, फ्रेडरिक जे रैमसेल, एंड शिमोन सागागुची have been given Nobel Prize in Physiology or Medicine for the year 2025 for what? So what is their research for which they have got this award? Yes, Aryan, Raj, Adrija, Kartikya, Koshagra, Chandralekha, Vanisha, you are right. For their discoveries concerning peripheral immune tolerance. Acha, can anyone tell me what is immune system? ये क्या होता है? Because they have done research on this, है ना? तो कोई ना, for their discoveries concerning peripheral immune tolerance, exactly what लिखा है. So it means they have done research related with immune system or immunology. So immune system क्या होता है? What is the meaning of this? Can anyone tell me? What is that? Because of course they can go in detail also. कभी कभी डेप्थ में जाते हैं और पूछते हैं अंदर से सवाल कि क्या मतलब हुआ पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस. White blood cells fighting bacteria. Very good. हाँ ठीक है, WBCs are involved in immune system. Very good. So immune system का मतलब ये होता है कि the system inside our body which fights against, है ना, external pathogens attacking our body. ओके, यानी कोई भी बाहरी ताकत अगर आके, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, कुछ और भी हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एनीथिंग एल्स, पैथोजन, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एनी डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस, है ना, लाइक फॉर एग्जांपल नॉट ओनली बैक्टीरिया बट लाइक वायरस, है ना, प्रोटोजोआ, और भी हो सकता है कोई भी ऐसी चीज जो बाहर से आ रही हो और हमारी बॉडी को नुकसान कर रही हो, तो हमारी बॉडी उसको फाइट करती है. सो आवर बॉडी फाइट्स अगेंस्ट दोज एक्सटर्नल पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस. सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यून सिस्टम. ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बिकॉज उससे होगा ये कि दिस इंश्योर्स दैट वी शुड नॉट बी गेटिंग एनी डिजीज. ठीक है, तो डिजीज फाइट करने के लिए इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर. कैन यू प्लीज टेल मी वन डिजीज in which the immune system becomes very weak and because of which
a person is vulnerable to attack from other diseases. एक बहुत फेमस बीमारी और इनफेमस बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और इसीलिए कोई और डिजीज होने का चांस भी हाई होता है. Yes, Karthik, right? Huh? So AIDS is actually caused by a virus called as HIV, human immunodeficiency. देखो उसमें नाम में ही सब कुछ है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है. ओके, सो इफ समवन इज गॉड फॉरबिड इन्फेक्टेड विद HIV, in that case the person is actually vulnerable to attacks from other diseases also, because actually the person has not very strong immune system and hence external attack can be there. तो उस आदमी का जिसको भी ऐसा बीमारी हो जाती है उनको फाइट करना किसी और बीमारी से भी बहुत मुश्किल हो जाता है. That is what you should be knowing. Okay, fighting this pathogen by WGC. Yes, Sharmeen Fatma, you are right. Huh? That's the idea of immune system. Now here is the next question, and this is related with the same topic actually. Nobel Prize 2025 winner in medicine category. Please answer me. This statement I have taken actually from the official Nobel Prize website. ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो पैसेज, ये नोबेल प्राइज की वेबसाइट से निकाला हुआ है. They means the 3 winners of Nobel Prize in medicine. Yes, identified the immune system security guard, regulatory, called as X. Yes, T cells or B cells generally word लिखा था, T cell and B cell. These are famous security guards. And thus laying foundation for a new field research. They discoveries also led to the development of potential medical treatment that are now being evaluated in clinical trials. The hope is to able to treat or cure autoimmune disease. Can anyone tell me what is this? Provide more effective cancer treatment. तो cancer treatment में भी helpful होगा और autoimmune disease fight करने में. And prevent serious complication after stem cell transplants. What is X? So the answer is T cell. So B is the right answer. आप बताओ autoimmune disease क्या होता है? देखो मैंने यहां से लिया है. I am showing from their official website. तो ये जो पैसेज है ना, इसी को मैंने दिया था. ठीक है. So these 3 are the winners: Mary E. Brunkoff, Fred Ramsdell, and Shimon Sagaguchi. है ना, for this, है ना. And this is actually the explanation of this. The explanation को मैंने पैसेज बना के पूछा. What is autoimmune disease? पूछ सकते हैं question that these are in the news. And in the end of the class, I'll show you the PYQs based on Nobel Prize. ठीक है, मैं previous year question दिखाऊंगा भी, so that you should get convinced कि questions आते हैं इसमें 2 साल पुराने पूछ लेते हैं और बहुत in depth भी कभी कभी जाते हैं. What is autoimmune disease? क्या होता है ये? Anyone? And how is cancer formed? Cancer कैसे होता है, कोई बता सकता है? थोड़ा सा आइडिया होगा. I'm not saying कि you should become a doctor or start doing PhD, but rough idea होना चाहिए. What is autoimmune disease? So बता ये रहे कि जो उन्होंने रिसर्च किया है टी सेल पर, ये सब, इससे ऑटो इम्यून डिजीज और कैंसर का इलाज मिल सकता है प्रॉपरली. नो वन रिस्पॉन्डिंग. ओके, देखो होता क्या है. लेट्स से दिस इज अ ह्यूमन बॉडी. ओके, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. एक आदमी है, ठीक है, जस्ट फॉर कैंसर गेट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इज कैंसर. यस, अंदर लिखा. यस, देखो होता क्या है. ऑटो इम्यून डिजीज मतलब मान लो कोई एक्सटर्नल अटैक हो रहा है, पैथोजन, वायरस, जैसे वायरस या बैक्टीरिया. So the body's interior, the WBCs and T cells, they fight. बाहर से जो आ रहा है उसको लड़ेंगे. तो ये तो नॉर्मल इम्यून सिस्टम हुआ, which is actually a good thing, a positive thing. The body is doing its job of fighting the external attacks, है ना. तो ये इट्स अ पॉजिटिव थिंग. बट समटाइम्स ऑटोइम्यून हैपेंस. ऑटोइम्यून क्या होता है कि बॉडी जो है ना वो ठीक से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है. द बॉडी स्टार्ट्स किलिंग इट्स ओन सेल, बिलीविंग दैट दिस इज एन एक्सटर्नल सेल. एंड दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज. गलती से बाय मिस्टेक बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है कि ये एक्सटर्नल
पैथोजन नहीं है, हमारी ही बॉडी का एक्चुअली सेल होता है और उसी को मारना शुरू कर देता है. उसको ऐसा फील होता है बॉडी को कि ये एक्सटर्नल वायरस है, ये एक्सटर्नल पैथोजन है. दिस इज कॉल्ड एज autoimmune disease. Okay, this has to be, these concepts has to be crystal clear. So autoimmune is a condition where your immune system mistakenly attacks and damages your own healthy cells, tissues and organs rather than foreign invaders. उसको ऐसा फील होता है बॉडी को, जो इम्यून सिस्टम है उसको फील होता है कि ये वाला ये जो पर्टिकुलर सेल है ये बाहर से आया, जबकि वो वहीं का होता है. ओके, दैट इज व्हाट. सो नॉर्मली क्या होना चाहिए, इम्यून सिस्टम शुड अटैक दोज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, द डेंजरस वंस, बट समटाइम्स इट स्टार्ट्स किलिंग इट्स ओन हेल्दी सेल्स. दैट इज कॉल्ड एज, दैट टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून डिजीज. उसको हम लोग ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं. ओके, एक दूसरी चीज, कैंसर जो होता है बेसिकली क्या होता है, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर, बॉडी के अंदर जो दो चीज होती रहती है, सेल डिविजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल कह दो, है ना, नया सेल बनता है इससे, एंड एपोप्टोसिस. इसमें क्या होता है, किलिंग ऑफ ओल्ड सेल्स. ओके, इमेजिन अ सिचुएशन, देखो, वेयर एपोप्टोसिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. आइडियली बोथ शुड बी इक्वल, है ना, मतलब बैलेंस होता है, सेल डिविजन एंड एपोप्टोसिस इज बैलेंस्ड. ओके, यानी सेल डिवाइड भी हो रहा है, नया सेल ही बन रहा है और पुराना मर रहा है ना. बट अगर इन कैंसर व्हाट हैपेंस इज द apoptosis or the cell division does not happen, cell killing of the old cell does not happen, or the death of old cell does not happen. This leads to what we call it as cancer. यानी नया सेल तो बनता ही है, पुराने को जो पुराने सेल है उसको मरते रहना चाहिए. अगर वो नहीं मरेगा तो कैंसर करेगा. इसीलिए आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड कि केमोथेरेपी में क्या होता है, जलाते हैं सेल को, है ना. केमोथेरेपी एंड अदर रेडियो लाइक लेजर्स आर बीइंग यूज्ड टू बर्न द ओल्ड सेल्स जो कि नहीं बर्न कर रहा है. सो दैट इज एक्चुअली कैंसर. तो ये सब में मतलब ये रिसर्च हुई है. दिस रिसर्च विल बी हेल्पफुल इन फाइंडिंग ऑटोइम्यून डिजीज एंड कैंसर ट्रीटमेंट. इज इट क्लियर टिल नाउ? इज इट क्लियर? यस और नो, बताइए. Is it clear, guys? If yes, then please write yes. Now, देखो, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. एंड वन इज रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में मदद करते हैं ना. सिमिलरली सेकंड होता है WBC जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. इसमें बहुत सारे होते हैं, ये वाला बहुत फेमस है ना. सो ये WBC से इसी में सब आता है, टी सेल, बी सेल सब इसी के अंदर आता है ना. तो WBCs आर एक्चुअली हेल्पफुल इन इम्यून सिस्टम फाइटिंग द एक्सटर्नल अटैक्स. ठीक है. और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है. जैसे कट उठ जाता है ना तो खून बहने लगता है, तो उसमें ब्लड क्लॉट अपने आप कर लेता है ना. अगर आप उसमें कुछ नहीं भी लगाओगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लड जो अपने आप खुद से क्लॉट कर जाता है ना. दैट्स कॉल्ड एज प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है. सो दीस आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स. सो ये वाला वी आर टॉकिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, है ना, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन या इम्यून सिस्टम. ओके, लेट्स मूव ऑन. थोड़ा सा आरबीसी के बारे में पढ़ लीजिएगा. बाइकॉन्केव होता है ना, बाइकॉन आई थिंक ऐसा है ना, डिस्क शेप, नो न्यूक्लियस, है ना. रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन में ये होता है आरबीसीज, है ना. सो आरबीसीज होता है हेमोग्लोबिन में, जिसके कारण ब्लड रेड होता है ना. कैरी ऑक्सीजन लंग से और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस टिश्यू में, इस सब में ले जाता है ना. सो लंग से बॉडी टिश्यू में ये ले जाता है आरबीसीज. व्हाइट ब्लड सेल्स मैंने बता दिया, इन्फेक्शन, फॉरेन इन्वेडर्स, यानी इम्यून सिस्टम के लिए यूज होता है ना. टी सेल्स एंड बी सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड. हाँ, लिम्फोसाइट्स उसी का पार्ट है. टी सेल वाज इन द न्यूज़, है ना, फॉर नोबेल प्राइज 2025. ठीक है. सो पैथोजेंस को खा जाता है ना. अब देख रहा हूं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज रिस्पांसिबल फॉर इम्यूनिटी. ये सारे जो है WBCs, इनका काम होता है बाहर के लोगों को जो एक्सटर्नल अटैक्स कर रहे हैं उनको काउंटर करना. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. एंड देन प्लेटलेट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, है ना, बोन मैरो वगैरह में पाया जाता है खास के, है ना. एंड दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो वो क्लॉटिंग वगैरह में हेल्पफुल होता है. दैट इज, हाँ, इतना पता चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाना. पीएचडी नहीं का देखो, ये स्क्रीनशॉट होने के उन्होंने यूट्यूब चैनल पे बताया कि ये टी सेल रिसेप्टर होता है. अपना डिटेल कुछ बता रहे थे, इतना डिटेल नहीं जाना, बट जस्ट हैव एन आइडिया कि इन्फेक्शन फाइट करने से रिलेटेड टी सेल WBC से रिलेटेड रिसर्च हुई. दैट इज मोर देन इनफ, नो नीड टू गो इन डिटेल. सो दीस 3 आर द विनर्स, है ना, मैरी ई ब्रेनकोव, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन सागाकुची. ओके, यस. Now let's talk something about them. They belong to where? So Mary E. Brenkov and Frederick J. Ramsdell belong हो जाएगा ना, से के 2 है plural.
जर्मनी, यूएस, जापान, ऑस्ट्रिया। यस कार्तिक के कुशाग्रा, यू आर राइट। बी इज द राइट आंसर। यूएसए से दोनों बिलोंग करते हैं, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चंद्रलेखा, यू आर राइट। नेक्स्ट इज शिमोन सागागुची, जो थर्ड वन है। दो तो यूएस से हैं और एक किसी और जगह से, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। Two are from US, one is from Japan. Very good. B is the right answer. Great. Very good. I'm very happy. तो ये जो है ना, this is actually from Japan and these two are actually from USA. ठीक है ना, आप देख सकते हो 2025 के बिना, these two are from US, this is from Japan. Peripheral immune tolerance, है ना। So शिमोन सागागुची के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। So he is actually Japanese immunologist, again the one who does research on immune system. Currently working at Osaka University में है, ठीक है। और उन्होंने डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की क्योटो यूनिवर्सिटी 1993 से, है ना। टी सेल में इनका रिसर्च है भाई, इम्यून सिस्टम, टी सेल, है ना। He has also won Canada Gardner Award in 2015 for the same discovery, ठीक है। So that is what you should know, है ना। ओके, है ना। पीएचडी का है क्योटो यूनिवर्सिटी से, ही टॉक पोस्ट डॉक्टोरल किया है जॉन हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से भी। इतना जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दिस। देख रहे हो उन्होंने कितना अवार्ड जीता है, देखो इतना सारा अवार्ड जीता है। सो मच अवार्ड्स ही हैज एक्चुअली वन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। द लेटेस्ट वन इज दिस। ये सब और के फेमस अवार्ड्स है दैट ही हैज वन फ्रॉम जापान, है ना। इज फ्रॉम जापान। ये दोनों जो है ये दे आर एक्चुअली फ्रॉम यूएसए। सो मैरी ब्रेनकोव होल्ड्स पीएचडी इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, है ना। शी इज करंटली मैनेजर एट सीनियर प्रोग्राम मैनेजर इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम बायोलॉजी इन सिएटल, यूएसए। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, पढ़ लीजिएगा। एंड फ्रेड रैम्सडेल इज अ साइंटिफिक एडवाइजर एट सोनोमा बायोथेरापेutics इन बेनब्रिज आइलैंड, वॉशिंगटन। ये वॉशिंगटन स्टेट की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी कंट्री के नहीं। वॉशिंगटन स्टेट, वॉशिंगटन डीसी तो कैपिटल हो गया यूएस का, वॉशिंगटन एक स्टेट भी है यूएस में ना। ही होल्ड्स पीएचडी अगेन इम्यूनोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, ठीक है। अगेन टी सेल पर रिसर्च के लिए उनको मिला अवार्ड, है ना। सो मैरी ए ब्रेनकोव, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये जो है ना ऊपर जिनकी लेडी का नाम है ना, शी हैज एक्चुअली डन रिसर्च ऑन FOXP3। ये भी पूछ सकते हैं, FOXP3 रिसेंटली न्यूज। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है, इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम में, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट शी हैज डन रिसर्च ऑन दिस, है ना, मैरी ब्रेनकोव, ठीक है। ओके, है ना। देन फ्रेडरिक जे रैम्सडेल को मिला, अमेरिकन इम्यूनोलॉजिस्ट है अगेन, है ना। रिसर्च एंड डायरेक्टर पार्क इंस्टीट्यूट कैंसर इम्यूनोथेरेपी, सैन फ्रांसिस्को, फ्रेड रैम्सडेल के बारे में, ठीक है। सो आप थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए। नो नीड टू गो इन डिटेल, आई हैव जस्ट गिवन यू अ बेसिक आइडिया, है ना। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड अबाउट इट, थेसिस वगैरह। कंसोर्शियम ऑफ रियली सेंट एन इमोशनल हेल्थ सपोर्ट पीडीएफ, अच्छा ग्रेट। अच्छा, जिन्होंने फॉर्म भरा उनको मिला होगा, है ना। ओके, so they might be sending you so as to ensure that you should not take too much tension in exam. Now let's talk about history of Nobel Prize in physiology or medicine because they are asking questions from this. मैं आपको दिखाऊंगा PYQ जहां पर वो पुराने सवाल उठा के पूछ रहे हैं। So first answer this question, then I'll show you the previous year question as well. तो आप पहले ये सब क्वेश्चन का आंसर करो, देन आपको PYQs बताऊंगा। यस कुशाग्रा, कार्तिक है, वेरी गुड, है ना। 1968 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन मिला था मार्शल डब्ल्यू डेरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली के साथ, है ना। फॉर व्हाट? फॉर ऑर्डर गैरिंग जेनेटिक कोड्स, है ना। ये सब आपको पता होगा, आई एम श्योर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हरगोबिंद खुराना, ठीक है ना। सो ही वाज एन इंडियन ओरिजिन पर्सन, लेटर ऑन बिकेम यूएस सिटीजन, नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ यूएसए, है ना। नेम द अवार्ड व्हिच वाज गिवन टू हरगोबिंद खुराना बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो भारत सरकार ने भी एक अवार्ड उनको दिया था, वो कौन सा था?
राइट आंसर इज पद्म विभूषण, राइट कार्तिक, राइट। हाँ, सो पद्म विभूषण अवार्ड मिला, जो कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। कब दिया गया था, व्हेन ही वाज गिवन दिस अवार्ड? थोड़ा सा ही सब जान ले रहे हैं पास्ट के बारे में, बिकॉज मे बी दे कैन आस्क क्वेश्चंस। सो पद्म विभूषण ही वाज गिवन इन 1969, सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, यस, ए इज द राइट आंसर, यस। कार्तिक के, यस, चंद्रलेखा जी, ऑल द राइट। हाँ, इसका आंसर बताइए प्लीज, टेल मी दिस। देखो 1902 1901 में तो एस्टैब्लिश ही हुआ था, और नेक्स्ट ईयर इनको नोबेल प्राइज इन मेडिसिन मिला था। ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया पर रिसर्च किए थे। फर्स्ट बॉर्न आउटसाइड यूरोप, फर्स्ट ब्रिटिश नोबेल आउटसाइड यूरोप, एक्चुअली इंडिया में बॉर्न हुआ था ना। यस, वेरी गुड, रोनन रॉस, वेरी गुड। कार्तिक को शाक रही हो, बहुत राइट, वेरी गुड। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए 1902 है ना। 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्टेड, 1902 में इनको मिल गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी टू सी। अल्मोरा, नॉर्थ वेस्ट, उधर से अल्मोरा आई थिंक यूपी में पड़ेगा। अल्मोरा आई थिंक यूपी और उत्तराखंड, आप चेक कर लीजिए कभी कहाँ है। उत्तराखंड में, यस, अल्मोरा इज इन उत्तराखंड, यस, है ना। इंडियन मेडिकल सर्विस में भी काम किया था उन्होंने, एटसेट्रा, है ना। फर्स्ट वाला नोबेल प्राइज मेडिसिन, हाँ ये भी देख लीजिएगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एमिल वॉन बेरिंग को मिला था, सेरम थेरेपी पे रिसर्च करने के लिए, है ना। और सेकेंड वाला रोनाल्ड रॉस को मिला था, मलेरिया पे रिसर्च था ना। इसका आंसर बताइए, इस पर क्वेश्चन आता अक्सर, मैंने सीयूईटी और कई सारे एग्जाम्स में देखा है। क्वेश्चन ये आता है कि हु फाउंडेड, लाइक नोबेल पेनिसिलिन के फाउंडर का नाम बताना है या डिस्कवरर का नाम। इनको नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी 1945 मिला था। ये पूछते हैं, ये दिस वन, दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। यस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वेरी गुड। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी प्रोमिनेंट एंड बीइंग आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम, तो मैंने इसीलिए बता दिया। ठीक है, ऐसे होती है कंप्रिहेंसिव प्रिपरेशन, ऐसे ही होता है ना। बस वन लाइनर पढ़ के चले गए कि इस साल किसको मिला नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी, तो उससे फिर काम नहीं चलेगा ना। सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। यस, अब मैं आपको लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर का भी डिस्कस कराऊंगा, बिकॉज दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन से भी क्वेश्चन पूछे हैं। सो नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन लास्ट ईयर वाज गिवन टू होम? ये सेव चर्चिल सन, अच्छा ऐसा भी है क्या? Victor Ambrose and Gary Rufkin, very good, Karthik. B is the right answer to this question. Very good, I have got one correct answer. And for what? For what purpose? For the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. C is the right answer to this question. ठीक है, yes, आप देख सकते हो, Victor Ambrose and Gary Rufkin for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. ठीक है, so C is the right answer to this question. ठीक है, ओके, आप देख सकते हो ये 2024 के विनर है लास्ट ईयर। इवन मैं 2023 का विनर भी बता दे रहा हूं, एंड द रीजन आई शो यू द रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग 2023 winner also I'll discuss. Yes, the right answer is B. Developing effective mRNA vaccine against COVID-19. B is the right answer. जैसा Pfizer, Moderna ये सब mRNA वैक्सीन था, है ना। कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विसमैन को मिला था। ठीक है, सो B is the right answer to this question. Yes, मैं क्यों बता रहा हूँ, I'll show you. हाँ, कैरिको जो होते हैं इनफैक्ट को फाउंडर है और भी बहुत सारी और कंपनी के दवा की बनाने वाली, है ना। She has served as vice president also in different organization, है ना। जैसे फाइजर था, मॉडर्ना, ये सब mRNA वैक्सीन था। ये इंडिया में कम मिला था, बाहरी कंट्रीज में ज्यादा था। ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को देखो, इसको कहते हैं पीवाईक्यूज एनालिसिस, सीरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, यही होता है। देखो क्वेश्चन आया था क्लैट 2023 में, एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर 2022। ठीक है, ये एग्जाम डेट है।
क्लैट 2023 या क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ो। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020। हाँ, एक किताब छपी जिसके राइटर थे ब्रिटिश मैथमेटिशियन, उनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 मिला, और आप 2 साल बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो, है ना। दिस इज एक्चुअली द अवार्ड इज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2020 एंड द अवार्ड इज गिवन ऑन 10 दिसंबर 2020। ठीक है, 10 दिसंबर को दिया था, मैंने बताया आपको 10 दिसंबर इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, एंड 2 years लेटर यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। इसीलिए दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट सिर्फ सरफेस लेवल पढ़ के नहीं है सॉल्व होगा, दे आर गोइंग वेरी मच इन डिटेल, आस्किंग यू लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर पुराना 2-3 साल उठा के सवाल पूछ रहे। ओके, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ठीक है ना। और इसका पता होगा, एलन ट्यूरिंग आप जानते हो, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, है ना। एलन ट्यूरिंग अवार्ड भी कहलाता है ना, फादर ऑफ क्या कंप्यूटिंग वगैरह भी उनका। एलन ट्यूरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ट्यूरिंग टेस्ट इज आल्सो देयर। ठीक है, अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गैरी कैस्परोव जो है ना, उन्होंने सुपर कंप्यूटर को बीट कर दिया था। अब ये क्वेश्चन कैसे करना था, क्वेश्चन नंबर 39, देखो 2 सिमिलर ऑप्शन में से कोई एक आंसर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। सो अगर आपको तुक्का मारना था, इन दोनों में से कोई एक मार देते। ठीक है, यू कुड हैव मार्क्ड आइदर ऑफ द टू एंड द आंसर इज बिटवीन आइदर ए और बी, इसी में से एक आंसर है। ठीक है, खैर, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो। नाउ इसी तरह नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स होता है, नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो फील्ड्स मेडल दिया था एवरी 4 years और एबेल प्राइज दिया था एवरी ईयर। सो प्लीज टेल मी 2025 के विनर का नाम। फील्ड्स मेडल तो एक्चुअली एवरी 4 years दिया था, सो 2026 में इट विल बी अनाउंस्ड। 2025 के विनर का नाम बताइए एबेल प्राइज के, एनीवन? It is famously called as Nobel Prize in Maths. The answer is Masaki Kashiwara. Is actually from Japan. Please remember it. Abel Prize. It is given again by Norway. Yes, Kartikeya Kushagra, Manisha, you all are right. है ना? Okay. है ना? Fields medal जो हर 4 साल पे एक दिया जाता है ना. So that is what you should be knowing. से पहले किसको इसको दिया गया था आप देख सकते हो, फील्ड्स मेडल अर्लियर, बट इस साल का पूछेंगे, 2026 का पूछेंगे, 22 का तो पुराना हो गया, 2026 में नॉट विल बी गिवन। ट्यूरिंग नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग कहते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड, है ना, एलन ट्यूरिंग उन्हीं के नाम पर है। ठीक है, 2023 में लेटेस्ट विनर है, और ये यहाँ ट्यूरिंग, यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर वो भी एलन ट्यूरिंग था। लैम्डा पूछा था, लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म पूछा था, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि चैटबॉट है एक तरह से, मतलब चैट जीपीटी टाइप समथिंग है। ठीक है, उस टाइम पर चैट जीपीटी एकदम जस्ट नया नया आया था, नवंबर 2022 में चैट जीपीटी हैड जस्ट कम एंड दे आस्क्ड क्वेश्चन ऑन एआई लैम्डा। ठीक है, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल दीस टाइप ऑफ थिंग्स, है ना। इस साल 2025 में ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया किसी को? हाँ, तो इन दोनों, या दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ, स्टार मार्केट 2023 में इनको दिया गया था, लेकिन 2025 में अलग याद रखना है, ट्यूरिंग अवार्ड ना, नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग कहते हैं इसको, एंड्रयू बार्तो एंड रिचर्ड स्वतान को दिया गया। प्लीज रिमेंबर इट, स्टार मार्केट, दिस इज आल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो कंप्रिहेंसिव तैयारी कीजिए, देन ओनली यू विल क्वालिफाई द क्लैट, अदरवाइज अगर सरफेस लेवल पढ़ के चल गए तो कम चांस है कि हो पाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी फोकस इन डेप्थ। So this is all about today's class. Tomorrow we'll be discussing about another winner. So please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thanks for watching.